السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج فزیکل کیمسٹری کا جو ہے ایک نیو لیکچر جو ہے وہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں. اور فزیکل کیمسٹری کا جو ہمارے پاس ایک چیپٹرس ہے جس کو ہم کیمیکل کائنیٹکس کہتے ہیں، تو اسی کے حوالے سے ہی ہمارے پاس جو ہے آج ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے ڈیریویشن آف سیکنڈ آرڈر ریئیکشنز. دیکھیں سیکنڈ آرڈر جو ریئیکشن ہے اس کے حوالے سے ایک تو پہلے بھی ایک میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اور یہ آج سیکنڈ ویڈیو ہے. آج جو ہم کیس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ آرڈر آف ریئیکشن کی ڈیریویشن کا خالی، تو اس میں ہم تھیوری ڈسکس نہیں کریں گے، صرف اور صرف ڈیریویشن کو ہی ڈسکس کریں گے. تو اس ڈیریویشنز میں ہم نے جو آج ڈیریویشن کرنی ہے سیکنڈ آرڈر کی، وہ اس کیس کی کرنی ہے جہاں پر دو ریئیکٹنٹ ہوں اور دونوں ریئیکٹنٹ کی کنسنٹریشن سیم ہو، یعنی کہ سیم ریئیکٹنٹس ہوں یا دو ریئیکٹنٹ ہوں اور ان کی کنسنٹریشن کیا ہو، سیم ہو. تو اس کو یہاں پر آج جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. تو ہمارے پاس جو ایکویشن ہے، جنرل ایکویشن جو ہم اس وقت لکھیں گے اس کے لیے، تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی. دیکھیں جنرل ایکویشنز ہمارے پاس اس طریقے سے ہوگی کہ ہمارے پاس ایک ریئیکٹنٹ ہے اے اور دوسرا ریئیکٹنٹ ہے بی، اور ان کا آپس میں ریئیکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں پروڈکٹ بن گیا سی ہمارے پاس. اب ہم یہاں پر ان کی جب کنسنٹریشن کو مینشن کرتے ہیں کہ ہم یہ لکھتے ہیں کہ ٹائم ہمارے پاس اس وقت جو ہے اسپینڈ ہوا ہے وہ 0 ہوا ہے، تو تب اس کی کنسنٹریشن اے ہے، اس کی کنسنٹریشن بھی اے ہے، جبکہ اس کی کنسنٹریشن 0 ہے. دیکھیں یہ وہ کیس ہے سیکنڈ آرڈر ریئیکشن کا جب دونوں ریئیکٹنٹ یعنی کہ دو ریئیکٹنٹس ہمارے پاس ہیں، سیکنڈ آرڈر آف ریئیکشن کی ایکویشن ڈرائیو کر رہے ہیں، دو ریئیکٹنٹ ہیں، دونوں کی کنسنٹریشن سیم ہے. جب دونوں کی کنسنٹریشن سیم ہمارے پاس ہو تو اس لیے دونوں کے ساتھ میں نے ادھر بھی اسمال اے لکھ دیا، ادھر بھی اے لکھ دیا، اور اے کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، انیشل کنسنٹریشن کو. جب ٹائم 0 ہے تو اس وقت انیشل کنسنٹریشن تو اے ہوگی لیکن پروڈکٹ کی کنسنٹریشن 0 ہوگی. لیکن اگر ٹائم کچھ اسپینڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم از اکول ٹو ٹی، یعنی کہ کچھ ٹائم گزر چکا ہے. جب کچھ ٹائم گزر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئیکٹنٹ ریئیکٹ کر چکے ہوں گے اور پروڈکٹ بنا چکے ہوں گے. تو ہم یہ لیٹ کرتے ہیں کہ سپوز جو سی ہمارے پاس پروڈکٹ ہے وہ ہمارے پاس بن چکا ہے ایکس. اگر جتنا سی بن چکا ہے اتنا اس کا مطلب ہے اے اور بی کی کنسنٹریشن میں ڈیکریز ہوا ہوگا، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے مائنس ایکس آ جائے گا اور یہاں پر بھی کیا آ جائے گا، اے مائنس ایکس آ جائے گا. کیونکہ جو ایکس پروڈکٹ بنا ہے تو وہ آپ کے پاس دونوں ریئیکٹنٹ اے اور بی کی وجہ سے بنا ہے، اس لیے اے سے بھی ایکس کو مائنس کر لیں گے، بی کی کنسنٹریشن سے بھی ایکس کو مائنس کر لیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک لحاظ سے اس کی ایکویشن آ جاتی ہے. اب اگر ہم اس کو لکھتے ہیں اکارڈنگ ٹو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ریٹ آف ریئیکشن، اگر ریٹ آف ریئیکشن کے مطابق ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی ایکویشن جو ہے وہ کیا بنے گی. ریٹ آف ریئیکشن کے مطابق جو اس کی ایکویشن بنے گی تو وہ ایکویشن کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس ہوگی کہ ہم یہ لکھیں گے کہ آپ کے پاس چینج ان کنسنٹریشن with respect to time، چینج ان کنسنٹریشن with respect to time کو ہی ہم ریٹ آف ریئیکشنز کہتے ہیں. ایکول ٹو ہے آپ کے پاس پروپورشنلٹی کا سائن ہم نے ختم کیا ہوا ہے اور کہ ایز اے ریٹ کانسٹنٹ کے طور پر آیا ہے، اور ہمارے پاس جو اس وقت ریئیکٹنٹ ہیں وہ دو ہیں جو کہ دونوں کے دونوں سیم ہیں، تو 1 اور 1 کتنا ہو جائے گا، 2 ہو جائے گا. تو یہ ریٹ ایکویشن بن جاتی ہے ہمارے پاس سیکنڈ آرڈر آف ریئیکشنز کی. دیکھیں سیکنڈ آرڈر آف ریئیکشن کی ریٹ آف ریئیکشن کی ایکویشن تو ہم نے ڈرائیو کر لی ہے، لیکن ہم نے اس کے ریٹ کانسٹنٹ کی ایکویشن کو انٹیگریٹڈ فارم میں ہم نے کیا کرنا ہے، ڈرائیو کرنا ہے. اچھا انٹیگریٹڈ فارم میں جب ڈرائیو کرنا ہے تو اس وقت یہاں پر دو ویریبل ہیں، ایک ایکس ویریبل ہے، ایک اے مائنس ایکس ویریبل ہے. یہ دو آپ کے پاس مین ویریبلس ہیں، اور جو یہ دو مین ویریبلس ہیں یعنی کہ یہ دو جو ہمارے پاس ویریبلس ہیں یہ دونوں کنسنٹریشن کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ہم اس کی ری ارینجمنٹ کرتے ہیں اس ایکویشن کی، کہ ہم اس کی ری ارینجمنٹ کے دوران کنسنٹریشن ایک سائڈ پر کر لیں گے، باقی سب کو ایک سائڈ پر کر دیں گے. دیکھیں جب بھی آرڈر آف ریئیکشنز ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کے کچھ سٹیپ ہیں. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ریٹ ایکویشن لکھنی ہے آپ نے. پہلا سٹیپ جو ہوگا اس کا وہ آپ نے کیا لکھنی ہے، ریٹ ایکویشن لکھنی ہے. اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں آپ لوگ کہ آپ نے جو فرسٹ سٹیپ لکھنا ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے ریٹ ایکویشن. تمام طرح کی جو بھی آپ کریں گے پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ نے ان کی انٹیگریشن لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا.
और जो तीसरा स्टेप आपके पास होता है उसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है इंटीग्रेशन कांस्टेंट की, कि जो आपके पास, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो उसकी वैल्यू भी आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जो इसके बाद का स्टेप इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आपने मालूम कर लिया, उसकी वैल्यू भी आपने पुट कर ली है, तो फिर आप क्या मालूम करेंगे, रेट कांस्टेंट का फार्मूला मालूम कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे। तो जब रेट कांस्टेंट का फार्मूला मालूम कर लिया तो बस आपके पास इंटीग्रेटेड जो मेथड है किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए, उसके लिए आपके पास मेन इक्वेशन आ चुकी होगी। मतलब ये 4 स्टेप आपने लाजमन फॉलो करने हैं। रेट इक्वेशन लिखनी है जो इस वक्त मैं लिख चुका हूँ, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है कि आप एक जैसे वेरिएबल को एक साइड पे कर दें, तो इसलिए यहाँ पर x कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, a माइनस एक्स चेंज इन कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, तो इनको मैं एक साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, मतलब इनकी रीअरेंजमेंट कर लूंगा। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन ले लेनी है, मतलब रीअरेंजमेंट के बाद फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसमें आ जाएगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आप फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके लिए बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, कैसे लगाते हैं वो भी इसमें आपको सिखा दूंगा। फिर इसके बाद रेस्ट कांस्टेंट को मालूम करना है। तो ये 4 स्टेप जो हमारे पास हैं, इनको आपने लाजमन फॉलो करना है, तब भी आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास इन स्टेप्स के अलावा आप फाइंड नहीं कर सकते, ये स्टेप आपको लाजमन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अभी सबसे पहले भी यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, इसकी रीअरेंजमेंट करता हूँ, और रीअरेंजमेंट किस तरीके से करता हूँ वो मैं लिख रहा हूँ कि आपके पास रीअरेंज द इक्वेशन। इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रीअरेंज करूंगा। कंसंट्रेशंस जो है वो एक साइड पर और बाकी चीजें एक साइड पर, तो ये हो गया dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू k dt। असल में dt यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो k से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए वो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगी। तो रीअरेंज भी कर लिया। तो सेकंड स्टेप इसका क्या था, इंटीग्रेशन लेनी है इसकी, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हम नीचे लिख देते हैं कि इंटीग्रेट द इक्वेशन, इंटीग्रेट द इक्वेशन। इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसकी इक्वेशन हम क्यों ड्राइव करते हैं, तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूं, वहां से आप इसको देख सकते हैं कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है वो फाइंड क्यों करते हैं, किस लिए उसको फाइंड करते हैं। सॉरी, इसको मिटा दिया, इसको वापस लिख देता हूँ। माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के dt। देखिए ये वो पार्ट है जिसके हम क्या करेंगे, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जिसकी हम इंटीग्रेशंस को आपके पास क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हमारे पास dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू k है, और इंटीग्रेशंस है, और dt है। देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं इस पार्ट को, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशंस आनी चाहिए, वो आपको सीखनी चाहिए। कैसे, आपके पास अगर आप किसी भी वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है और इधर आपके पास क्या है, dx मौजूद है, तो आपने ये देखना है कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं। पहली चीज तो ये देखनी होती है कि जब आपके पास इस तरीके से अपॉन में मौजूद हो, तो आपने ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं है। तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो मैं यहाँ पर अभी डेरिवेटिव लेता हूँ। आप देखें कि अभी इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव कैसे होगा इसका, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर बैक साइड पर आ जाती है, और पावर में से ही हम 1 को क्या कर लेते हैं, माइनस। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है। तो क्या एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि ऊपर भी एक वेरिएबल होना चाहिए था, x होना चाहिए था। अगर ऊपर भी x होता तो फिर तो हम बेशक 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, तो वो तो बन सकता था। कांस्टेंट नंबर को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। जब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें नेचुरल लॉग वाला फार्मूला नहीं लगेगा। जब नेचुरल लॉग वाला नहीं लगेगा तो फिर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे,
फिर इसमें हम आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। और सिंपल इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई हो सकती है, किस तरीके से, हम इसको ऊपर पहले शिफ्ट कर देंगे। ये देखें x की पावर +2 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगी। अगर ऊपर आकर ये -2 हो जाती है यानी कि x -2 हो गया और dx हो गया। अब अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं फार्मूला, तो इंटीग्रेशन का फार्मूला ये होता है कि पावर जो भी हो उसके साथ 1 प्लस करना है, और जो नीचे मौजूद हो x, जो मतलब कि जो पावर बन रही है जिसके ऊपर पावर मौजूद है उसी पावर को आपने नीचे भी लिख लेना है, प्लस आपने क्या लगा देना है, c लगा देना है। मतलब इस तरीके से सॉल्व करना है। और x का जो डेरिवेटिव भी है वो भी आगे लिखना होता है। तो x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है, तो 1 भी आप आगे लिख देंगे। 1 आगे लिख देंगे तो 1 मल्टीप्लाई करें तो किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो x की पावर क्या बच रही है, वो -1 बच रही है, और नीचे भी -1 और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये इस तरीके का हमारे पास आंसर आ जाता है इसके इंटीग्रेशन का। अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन लेता हूं, जो असल हमारे पास है ये वाला जो पार्ट है, इसकी इंटीग्रेशन इस साइड पर मैं लेता हूं, और उसका फिर रिजल्ट जो है वो हम इधर लिख लेंगे इसके साथ। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन इस वक्त हमने लेनी है वो किसकी लेनी है, वो लेनी है 1/a-x² और dx से। तो ये इस वक्त पावर में है। अगर कोई चीज पावर में हो तो उसका नेचुरल लॉग नहीं लग सकता। हाँ, नेचुरल लॉग उस वक्त लग सकता है कि नीचे भी जो वेरिएबल मौजूद हो वही वेरिएबल ऊपर भी मौजूद हो, तो तब आपके पास जो है नेचुरल लॉग लग सकता है। लेकिन नीचे वाला वेरिएबल जो है वो a-x है, तो x एक वेरिएबल है, लेकिन ऊपर कोई भी x मौजूद नहीं है। जब ऊपर कोई x मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें नेचुरल लॉग वाला फार्मूला नहीं लगेगा। जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की थी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलेशन में, वहां पर उसमें नेचुरल लॉग लग रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। हम इसको सिंपल ऊपर शिफ्ट कर देंगे, +2 है तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a-x² -2 हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ x है। फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, a-x का x रहा, -2 + 1 आ जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, -2 + 1 आ जाएगा। अब बताएं -x का डेरिवेटिव क्या आता है। देखें x का डेरिवेटिव 1 आता है, और -x का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अगर अभी आप इसको सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट हो जाएगा a-x -1, और नीचे भी क्या आता है, -1, साइड पर इधर भी क्या है, -1 और +c है। तो ये -1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दो जो -1 है, ये -1 ये -1 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आपके पास क्या आया है, यानी कि इस पोर्शन का जो हमने डेरिवेटिव लिया है वो रिजल्ट आया है a-x और पावर 1 और +c, क्योंकि ये -1 से कैंसिल हो चुका है। अब इसी वैल्यू को, इसी पोर्शन की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास यानी कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको पहले ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/a-x² हो गया, dx हो गया = k है इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब इसका पूरे पोर्शन का आंसर ये वाला आता है, मतलब ये आंसर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट c एक दफा लिखना होता है, इसलिए c को हम उस साइड पे लिखेंगे, कांस्टेंट की साइड पे लिखेंगे। इस पूरे का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है इस पूरे प्रोसेस को, तो इसकी जगह पर डायरेक्ट ये वाला लिखूंगा भी इसमें। तो a-x आया, और ऊपर पावर क्या आ गई, -1 = k है। ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, t आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, c हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस वक्त आपके पास क्या आया हुआ है, इसका आंसर आया हुआ है एक पोर्शन का, यानी कि फर्स्ट आपके पास पोर्शन इसका जो था इंटीग्रेशन वाला वो कंप्लीट हो चुका है। देखें, मैंने शुरू में बताया आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जब हम मालूम करते हैं उसके स्टेप हैं। पहला स्टेप था रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी थी, वो हमने लिखी। फिर उसकी रीअरेंजमेंट की, मतलब कंसंट्रेशन को एक साइड पर कर दिया, कांस्टेंट को दूसरी साइड पर कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या था, इंटीग्रेशन लेना, तो जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटीग्रेट किया था इक्वेशन को, तो जो इक्वेशन है वो इंटीग्रेट भी हो चुकी है। फिर तीसरा स्टेप मैंने लिखा था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर c इस वक्त क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ रहा है, मतलब वो कांस्टेंट जिसके डेरिवेटिव का जवाब 0 आया था, तो उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। कोई कांस्टेंट वैल्यू अंदर मौजूद है तो उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है, इसको आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे, मतलब c की वैल्यू मालूम करेंगे। तो कांस्टेंट नंबर तो वो होगा जो रिएक्शन से पहले होगा, क्योंकि रिएक्शन के बाद तो चेंज आ रहा है ना आपके पास,
तो रेशियो से पहले वाले जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट नंबर होंगे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, सी की वैल्यू मालूम करने के लिए अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? बाउंड्री कंडीशन ये है कि अगर टाइम 0 गुजरा हो, तो जब टाइम 0 है तो फिर तो प्रोडक्ट नहीं बना होगा ना, यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू भी 0 होगी, और प्रोडक्ट कौन था, x था, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। इस वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। इसको जब पुट करते हैं तो नीचे वाले को इस वक्त मैं मिटा देता हूं। देखिए इसमें वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में वैल्यू जो वैल्यू को पुट करता हूं तो a का a रहा, माइनस है, x की जगह पर क्या आ जाएगा 0, और ऊपर पावर क्या है -1 है, इज इक्वल टू क्या है, t की वैल्यू भी 0 होगी, और प्लस क्या हो गया c, 0 k से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, a में से 0 माइनस करेंगे तो a की पावर क्या बच जाएगी -1 इज इक्वल टू c। तो ये किसकी वैल्यू इस वक्त हमने निकाल ली है? अगर आप ये देखें c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इस c की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहीं पर मैं इसको पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 के अंदर, से पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं तो a माइनस एक्स अपनी जगह पर आ गया, इज इक्वल टू के टी भी अपनी जगह पर आ गया। c की जगह पर क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे, a की पावर -1 आ चुका है। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस वक्त आपके पास जो है कुछ फाइनल टच में आ चुकी है। अब इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को यहां से मैं मिटा रहा हूं, जो इंटीग्रेशन हमने ली थी। देखें इस वक्त आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है। इसी इक्वेशन को वापस ऊपर लिख रहा हूं एक दफा, आप दोबारा नहीं लिखेंगे अगर आप नोट कर रहे हैं इसको। a माइनस एक्स है, -1 है, इज इक्वल टू क्या है, के टी है, a माइनस 1 है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा ये -1 है तो माइनस में है हमारे पास, इसको ये प्लस में है तो इसको इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में वैल्यू इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगी, और a माइनस एक्स की पावर -1 ऑलरेडी मौजूद है, माइनस है, a की पावर -1 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, के टी। देखिए जिनकी पावर माइनस में होती है, अगर आप उसको प्लस में चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको शिफ्ट कर देते हैं नीचे की तरफ, यानी कि अपोजिट कर देते हैं। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 ऊपर रहेगा, और ये माइनस में है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए इस तरह शिफ्ट करने से सिर्फ पावर की साइन चेंज होता है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते मैथमेटिकली, सिर्फ पावर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। माइनस अपनी जगह पर है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो 1 अपॉन a हो गया, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, के टी के बराबर आ चुका है। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, तकरीबन फाइनल इक्वेशन के जो है हम करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर अभी इसको मजीद हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अच्छा मजीद सिंपलीफाई करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं जो नीचे मौजूद है, ताकि आपके पास ये थोड़ा सिंपल हो जाए। a हो गया a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी इनको, a 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, और ये वाली आपके पास जो है यहाँ पर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। अब इनको हमने फर्दर मल्टीप्लाई करना है, तो एक a रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, प्लस ए है और माइनस ए है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है x है और नीचे a है, a माइनस एक्स है, इज इक्वल टू हमारे पास, अच्छा t मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन टी है, और इधर क्या बच गया, k बच गया। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। किसकी फाइनल इक्वेशन है, ये इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फाइनल इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली है। ये कौन सा केस है, जब आपके पास दो रिएक्टेंट हो और दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब सेम होगी, तो तब हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है उसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। तो देखें ये इक्वेशन तो हमने ड्राइव कर ली है इस वीडियो के अंदर। अभी इसी आपके पास
जो टॉपिक है इसमें हम इसी इक्वेशन से आगे हाफ लाइफ का इक्वेशन भी ड्राइव करते हैं, इसी से हम यूनिट भी ड्राइव करते हैं, इसी इक्वेशन के जरिए से हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपके पास इनको भी एक्सप्लेन कर लूंगा। तो ये हमारे पास इस वक्त एक डेरिवेशन थी, डेरिवेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस व्हेन द कंसंट्रेशंस ऑफ द टू रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर्स, then the equation of the rate constant equal to 1 upon Tx upon A into A minus x आ जाएगा। x प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, A इनिशियल कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, A माइनस एक चेंज इन कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, और T यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है। क्योंकि जो रिएक्शंस हो रहा है उसमें जो इंटरवल हम फाइंड करते हैं वो टाइम के लिहाज से मालूम करते हैं कि 5 मिनट्स के बाद कितना चेंज आया, फिर 5 मिनट्स के बाद कितना चेंज आया, फिर 5 मिनट्स के बाद कितना रिएक्शन में चेंज आया है। उसको फिर टाइट्रेशन के प्रोसेस से चेक करते हैं कि कंसंट्रेशन में कितनी तब्दीली आ चुकी है। प्रैक्टिकली भी इसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसका इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा एक प्रैक्टिकल भी आपसे शेयर कर लूं। तो डेरिवेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, उसको हमने इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। अब इस हवाले से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहें तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। थैंक्स।